مارکا حق کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ مارکا حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونومنٹ پر خصوصی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ ہر سال 10 مئی کو یوم مارکا حق بھرپور جوش و جذبے سے منانے کا اعلان۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بے بنیاد الزامات لگائے۔ ہم نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے آگاہ کیا تھا۔ واقعے کی ہر طرح کی تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ Issue of illegal Indian occupation of Kashmir needs to be resolved in accordance with UN resolution. Unilateral and illegal attempt by the Indians to suspend Indus Water Treaty amounts to hydro-terrorism and talks about the past where the world has fought wars called water wars. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان مونومنٹ پر مارکا حق کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا بھارت کی جانب سے انصاف معاہدے کی معطلی کی کوشش آبی دہشت گردی ہے۔ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اس مارکا میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ دشمن شاید بھول چکا تھا کہ اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی جس کا منہ توڑ جواب مارکا حق بنیاد المرصوص کی صورت میں دیا گیا۔ مارکا حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا جس میں حق فتح یاب ہوا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کا مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر خطاب۔ کہا بھارت نے ماضی میں بھی فوج فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان نے ہر سے فاش دی۔ مارکا حق کے عظیم شہداء ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن ہیں۔ غازیوں کو بھی قوم اور سپاہ پاکستانیوں کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مارکا حق میں فتح نے خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ آج عالمی ایوانوں میں پاکستانی قیادت کو عزم و تسلیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے خطاب میں کہا دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا نے خطے میں جنگ بندی کروانے اور مذاکرات کے ذریعے خطے کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے نمایاں کیا۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ بھارت شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک
जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम फोर्सेज और इदारों को दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर खिराज तहसीन। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी मराकज खत्म करे। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ इस्तफ़साबे राय दिया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मौसूल हो गया है और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मार्क कहत के हवाले से तकरीब से अपने खिताब में कहा कि ईरान जंग में सालिसी के हवाले से बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी मशकूर हैं जिन्होंने जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, चीनी सदर शी जिनपिंग और क़यादत का भी शुक्रिया जिन्होंने मार्क के हक़ में सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत की। ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बरूए कार ला रहा है। दुनिया की तारीख का हमबाब रकम पाक अफवाज का मुल्की सलामती का आज़माल का हक को 1 साल मुकम्मल। वतन के मुहाफिजों की कुर्बानी और नाकाबिल तस्खीर दिफाई कुव्वत को सलाम। GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगारी शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों की सलामी। मार्क के हक़ की सालगिरह पर कराची में नेवल डॉकयार्ड पर पुरवकार तकरीब। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्क के हक़ में कौम ने सीसा फैलाई दीवार बनकर कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और पाकिस्तान को तारीखी फतह हुई। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अमन, ज़ब्त और तहम्मुल और अमन की पॉलिसी पर यकीन रखता है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाहदा बॉर्डर पर मार्क हक़ की तकरीब से खिताब। मार्क हक़ में शानदार कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें अपने शहदा पर फख्र है। शहदा की माओं को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को भी सलाम जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मार्क का हक़ का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद। पाकिस्तान रेंजर्स की शानदार परेड। मिली नग़मों ने शुरका का खून गरमा दिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मार्क के हक़ में अजीम और शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में पुरवकार तकरीब। DG रेंजर सिंध ने यादगारी शहदा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। लाहौर में यादगारी शहदा पर तकरीब में कोर कमांडर लाहौर यादगारी शहदा पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोयटा में भी यादगारी शहदा पर पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। IG बलूचिस्तान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर ममालिक के फौजी अफसरान और वफ्द की भी यादगारी शहदा पर हाजिरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मार्क हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन का गुरूर मिटाकर साबित कर दिया कि मुल्क की सरहदें महफूज हाथों में हैं। पाक अफवाज के गाज़ियों और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे जवानों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान के दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन का हमार का हक में पाक फौज ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जाहिलियत के बावजूद पाकिस्तान में किसी के चेहरे पर परेशानी दिखाई नहीं दी। कौम को यकीन था कि हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं और वतन का दिफा करना बखूबी जानते हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग का बुनियादी मरसूख मार्का है खवातीन मार्च। हलाले अहमद चौक से जिला कौंसल चौक तक मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका ने पाक फौज के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मार्का हक बुनियादी मरसूख का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर के अवाम पुरजोश शहर शहर करिया करिया रैलियां जुलूस और सेमिनार। बहादुर पाक फौज से जारी यकजहती जफराबाद सांघर सवाबी लोधरा मुल्तान में आवाम की बड़ी रैलियां। फजाओं में पाक फौज जिंदाबाद फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाक फौज को खिराज तहसीन शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। कौम का फौज पाकिस्तान के साथ बुनियादी मरसूख बनकर खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल जासिम अल सानी का टेलीफोन। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की हिमायत पर तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का अमन कोशिशों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए फरीक़ैन की तरफ से तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका आला सतह पर मुलाकातें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ास एलची विटकॉफ की शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ बैठक। मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। कबल अज़ें कतर के वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने तमाम फरीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर दिया। सवात की तहसील चारबाग के इलाके में मुसाफिर कुछ ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी। हादसे 7 जख्मी हो गए। शिकारपुर में बारातियों से भरी बस तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, दुल्हा दुल्हन समेत 25 से ज़ायद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल, कई की हालत तशवीशनाक। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस न आने से घरों में नाश्ता खाना बनाना खवातीन के लिए दर्द-ए-सर बन गया। कारोबार पर भी मंफी असरात। होटल और खरीदने पर मजबूर। आवाम गैस की तवील बंदिश पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव जारी। 11 मई तक सक्खर, लाड़काना, दादू, घोटकी और मुल्हिका अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। हीट वेव भी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 से 49 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। गर्मी की शिद्दत में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कमी। और मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सयाहों ने ठंडे मकामात का रुख कर लिया। वादिये सवात में सहित अफसा मकामात पर कुदरत के दिल फरेब नजारों और यकबस्ता हवाओं से लुत्फ अंदोज होने खिंचे चले आने लगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।